Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। It's such a joy to come to your house and bring God's word, my friend. मेरे दोस्तों, आपके घर में आकर परमेश्वर का वचन बताना सच में हमारे लिए खुशी की बात है। I thank the Lord for wonderful miracles you've been receiving through this program. इन प्रोग्राम के माध्यम से आप जो अद्भुत चमत्कार पा रहे हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I give him all the glory. मैं उसे सारी महिमा देता हूँ। I thank you all for calling and getting in touch with us and sending your prayer request. आप सब हमें जो फोन कर रहे हैं, अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद हो। We ensure you our sincere prayers. हम हमारी ईमानदारी की प्रार्थना की आपको शाश्वती देते हैं। Love you all in the name of the Lord. आप सभी से प्रभु के नाम में हम प्रेम करते हैं। It is the love that the Lord has shed into our hearts to bring this program to your life. और परमेश्वर ने ये प्रेम हमारे दिल में रखा है कि इस प्रोग्राम को आपके जीवन में लेकर It's आए। a burden given by the Lord to minister to you through this program and strengthen you in your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में आपको बल देने के लिए ये प्रोग्राम तो परमेश्वर ने मानो हमारे दिल में एक बोझ के रूप में रखा है। Our desire is to see the name of the Lord being glorified in your personal life. हमारी इच्छा यही है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के यीशु के नाम को महिमा पाते हुए हम देखें। Today we are going to pray for all those who are suffering with sickness and those who are waiting on the Lord for healing. आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमारी के कारण दुख उठा रहे हैं और प्रभु की राह देख रहे हैं कि वो चंगाई You might पाएं। be watching this program in the sick bed. शायद हो सकता है कि आप बीमारी में बिस्तर पर पड़े हुए प्रोग्राम You देख might रहे be हैं। watching this program from some hospital. शायद हो सकता है कि आप किसी हॉस्पिटल से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। You might be watching in this program through the sick bed, which is less drawing you near to the death. और शायद आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं जो आपको बिल्कुल खत्म करने पर हैं। Even today, और आज भी as you have tuned to this program, जैसे आप इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, I am very sure of this one thing. मैं इस एक बात के बारे में निश्चित हूँ, Lord's word will never return back to him in emptiness. परमेश्वर का वचन कभी उसके पास में खाली नहीं लौटता है। Psalms 107 verse 20 says, He sent forth His words and healed His people. भजन संहिता 107 वचन 20 कहता है कि वो अपने वचन को भेजता है और लोगों को चंगाई देता है। Bible talks about miracle healing right from the book of Genesis to the book of Revelation. बाइबल उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक चमत्कारों के बारे में कहती है। Bible says in Isaiah chapter 53 verse 5, Jesus paid the price for our healing on the cross. बाइबल यशायाह 53 वचन 5 में कहती है कि यीशु ने क्रूस के ऊपर हमारी चंगाई के लिए कीमत चुकाई है। When Peter writes, he writes about this in 1 Peter chapter 2 verse 24, and the second portion of the scripture says like this. और जब पत्रस लिखता है तो दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 24 के दूसरे भाग में वो इस तरह से कहता है, By whose stripes you were healed. किसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। Whereas the Isaiah prophet says like this. जबकि यशायाह भविष्यवक्ता इस तरह से कहता He है, says the last portion of that 53rd chapter verse 5, the last portion of that says like this. और 53 अध्याय वचन 5 का अंतिम जो भाग है वो इस तरह से And कहता with है, his stripes we were healed. किसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। Jesus has paid the price for your healing. यीशु ने आपकी चंगाई के लिए दाम चुकाया है। 1 Corinthians chapter 12 verse 9 talks about the gift of healing. पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 चंगाई के वरदान के बारे में कहता है। We see the 9 gifts of the Holy Spirit in that portion. हम वचन के इस भाग में पवित्र आत्मा के 9 वरदान देखते And हैं one of the gifts of the Holy Spirit is healing. और पवित्र आत्मा के वरदान में से एक वरदान है चंगाई के वरदान। God will never want not only heal our physical bodies, परमेश्वर केवल हमारे शारीरिक देह को चंगाई नहीं देता, He will heal our mindset. लेकिन वो हमारे मानसिकता को भी चंगाई देता है। He will heal the broken heart. वो टूटे हुए दिल को चंगाई देता है। He will heal our personal life. वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को चंगाई देता है। He will heal our finances. वो हमारे धन को भी चंगाई देता है। And He will heal all sorts of things which is like just dark. और वो उन सारी चीजों को चंगाई देता है जो कि पूरे अंधकार से भरी है। Broken relationship the Lord is going to heal right now in Jesus' name. टूटे हुए संबंध को प्रभु अभी इस समय यीशु के नाम में चंगाई देगा। By His mercies and grace, we have seen through this ministries, many have been receiving the blessings of the Lord through healing power. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने देखा इस सेवकाई में कि बहुत से लोगों ने चंगाई की सामर्थ प्राप्त की है।
We have many people in our church who have been healed from various dangerous, deadly diseases. हमारे कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ही भयानक बीमारी से चंगाई पाए हैं। Every Friday I wait on the Lord to minister to people who come for healing and deliverance. हर शुक्रवार को हम प्रभु की राह देखते हैं कि जो वो लोग वहां पर छुटकारे और चंगाई के लिए आए, उनमें चंगाई हो, काम हो। We have seen disease like HIV being healed. हमने देखा है कि HIV एड्स जैसी बीमारियां चंगी हुई हैं। We have seen people who have been healed by cancer. हमने ये भी देखा है कि लोग कैंसर से चंगे हुए We हैं। have seen the people who have not yet received the blessings of child receive blessings through this program. हमने ये देखा है कि जिन लोगों को संतान नहीं थी, वो उन्होंने इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु की आशीष के रूप में We संतान have पाई। seen who have addicted drinking habits have been delivered. हमने ये देखा है कि जो लोग शराब के आदी हो चुके थे, उन्होंने छुटकारा पाया है। Last few days ago, I received a call from Delhi, कुछ दिनों पहले मुझे दिल्ली से एक फोन आया and a sister was watching this program. She said that the Lord healed her from her stomach pain. और एक बहन ये प्रोग्राम देख रही थी और उन्होंने कहा कि प्रभु ने उनके पेट दर्द से उन्हें चंगाई दी। Doctor suspected that it could be cancer, डॉक्टर ने संदेह किया था कि ये कैंसर हो सकता है, but after listening to the message, लेकिन संदेश सुनने के when she बाद went back for the checkup, जैसे वो चेकअप के लिए गई, everything was normal. सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। My friend, मेरे दोस्तों, God's healing is so real. परमेश्वर की चंगाई बहुत ही वास्तविक है। Our God is a healer. परमेश्वर चंगाई देने वाला है। As you've been tuned to this program, जैसे आप इस प्रोग्राम को देख रहे today हैं, is your day to receive the healing touch of the Lord. आज आपका दिन है कि आप परमेश्वर के चंगाई के स्पर्श को प्राप्त करें। Today is your day for deliverance from the sick bed. उस बीमारी के बिस्तर से चंगाई पाने का आज का आपका दिन है। Today is your day for deliverance in your financial problems. आज आपका दिन है कि आप अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाए। All broken relationships are going to be healed and set right. सारे टूटे हुए संबंध चंगाई पाएंगे और बिल्कुल सही हो जाएंगे। Separations, the Lord is going to heal all separations and unite each one of us. जो अलग हुए प्रभु ने चंगाई देगा और हम में से हर एक को जोड़ेगा। Lord is going to heal your land and it's going to yield good fruit. परमेश्वर आपकी जमीन को चंगाई देगा और वो अच्छी फलवंत होगी। So those who are watching this program, इसलिए जो ये प्रोग्राम देख रहे stay हैं, tuned. आप हमारे साथ बने रहें। End of this message, इस संदेश के अंत में I'm going to pray for your healing. मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा। Gospel according to St. Mark chapter 10 verse 46 to 52 talks about healing of a blind person. मरकुस अध्याय 10 वचन 42 से 46 तक जो है एक अंधे व्यक्ति की चंगाई के बारे में कहता है। And he was born blind. और वो तो जन्म से ही अंधा था। His name is mentioned as Bartimaeus. उसका नाम बताया जाता है कि उसका नाम बार्तिमाई था। And he was a beggar in the streets. और वो तो सड़कों पर भीख मांगा करता था। His life was so useless. उसका जीवन पूरी तरह से बेकार था। He was so broken. वो बहुत ही कंगाल था। He had no any other option. उसके पास में और दूसरा कोई पर्याय नहीं He था। was sitting all alone there begging from morning till evening for his daily life. और वो प्रतिदिन के जीवन के लिए, जीविका के लिए सुबह से शाम तक भीख मांगते हुए बैठा And था। one day, और एक दिन he heard Jesus passing by his way. उसने सुना कि यीशु उसके मार्ग में से जा रहा है। Might be before you'd have heard about the miracles of Jesus. शायद हो सकता है कि उसने उसके पहले यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना होगा। Might be you'd have heard all the mighty things the Lord Jesus has been doing those times. और उन दिनों में यीशु जो सामर्थी काम कर रहा था, शायद उसके बारे में उसने सुना होगा। So by hearing all the things, और इसलिए इन सारी बातों को सुनने के his कारण faith grew up. उसका विश्वास बढ़ा। He was anticipating for God's work in that place. वो परमेश्वर के काम की अपेक्षा कर रहा था। He was waiting for an opportunity. वो एक मौके की राह देख रहा था। He was waiting for his turn. वो अपने मौके के, अपनी बारी की राह देख रहा था। He decided one thing in his heart. उसने अपने दिल में एक बात का निर्णय When लिया। Jesus comes this way, जब यीशु इस मार्ग में आएगा, I am going to hold on him. मैं उससे थाम And लूंगा I am going to beg him. और मैं उससे विनती करूंगा। I am going to request him. मैं उससे निवेदन I'm going to करूंगा। pray in faith. मैं विश्वास से प्रार्थना करूंगा My eyesight will be restored. कि मेरी आंखें, जो मेरी दृष्टि है, वो ठीक हो जाए।
And I know for sure और मैं निश्चित ही जानता हूँ how Jesus can heal my blindness. कि यीशु मेरे अंधत्व को चंगाई दे सकता है। This is what was in the heart of Bartimaeus. और यही तो बारतमई के दिल में था। And the day came. और फिर वो दिन आया। The day came. वो दिन On आया the side of Jericho. यरीहो के बगल में ही। This beggar was right there sitting. यरीहो के सड़क पर ये भिखारी वहां पर बैठा Jericho था। is a very famous city. यरीहो बहुत ही विख्यात ऐसा शहर It is a है। city of a palm tree, they say. लोग कहते हैं कि ये तो खजूरी के पेड़ का शहर है। We also see हम ये भी देखते हैं when the people of Israel prayed 7 times in midst of the Jericho, they had the Jericho walls trembling down to the floors. जब इस्राएली लोगों ने 7 बार परमेश्वर की स्तुति की और तब यरीहो की शहरपनाह गिर See गई। the fall of Jericho walls when people of Israel praised for 7 times. जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की 7 बार स्तुति की तो हम देखते हैं कि यरीहो की शहरपनाह गिर गई। Same place this beggar is waiting. उसी जगह पर यह भिखारी राह देख रहा था। And the day came, the Lord walked through that way. और फिर वो दिन आया जब प्रभु उस मार्ग में चलते हुए आया And he started calling him, और वो उससे पुकारने लगा, pleading him for mercy. दया के लिए उससे भीख मांगने लगा। Oh, son of David, हे दाऊद की have संतान, mercy on me. तो मुझ पर दया कर, Have mercy on me. तो मुझ पर दया कर। Even though many people around him stopped him and they said, just keep quiet, but he didn't stop. और हालांकि उसके आसपास के लोगों ने उससे कहा कि तू चुप हो जा, शांत हो जा, लेकिन वो और चिल्लाता रहा। Finally, Lord stood and said, bring him here. और अंत में प्रभु खड़ा हुआ, उसने कहा कि उसे यहाँ पर Jesus लेकर आओ। asked him, what you want from me? He said, I want to receive my eyesight. और जब यीशु ने उससे पूछा कि तू मुझसे क्या चाहता है, तो उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। Bible says, बाइबल कहती है तुरंत ही, तुरंत ही Jesus said, यीशु ने कहा, let it be to you as you believe. जैसे तू विश्वास करता है वैसे ही तेरे साथ हो। Bible says, बाइबल कहती है immediately he got back his sight. तुरंत ही वो देखने लगा। Instant healing recorded in the scripture. वचन में तो ये तुरंत चंगाई के बारे में लिखा हुआ है। Then and there the Lord performed this miracle. और वहीं पर तो परमेश्वर ने चमत्कार किया। Not the next year, अगले साल नहीं, not the next day, अगले दिन नहीं, not the next month, अगले महीने नहीं, not even the next minute. और यहाँ तक कि अगले मिनट भी The नहीं, same time. बिल्कुल उसी पल, Even now, और यहाँ तक कि अभी भी Jesus is the same yesterday, today and forever. यीशु आज कल और युगान युग एक सा है। Even today he is so powerful. आज भी वो बहुत ही He सामर्थी can है। heal you instantly, my friend. मेरे दोस्तों, वो आपको तुरंत चंगाई दे सकता Your है। diseases are not greater before him. आपके रोग उसके सामने बड़े नहीं हैं। Your disease is not greater than God. आपके रोग बीमारी परमेश्वर से बढ़कर नहीं Your है। situations are not greater than God. आपकी परिस्थिति परमेश्वर से बड़ी नहीं है। Our God is greater than everything else. हमारा परमेश्वर बाकी सारी चीजों से बढ़कर है। From my childhoodness I went under sickness. मेरे बचपन से मैं बहुत ही बीमार हुआ करता था, And my grandmother dedicated me for the service of the Lord. और मेरी दादी ने मुझे प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया। She vowed like this, और उसने इस तरह से मन्नत मांगी, if this child lives, अगर ये बच्चा जीवित रहता है let him serve you, Lord. तो हे प्रभु ये तेरी सेवा करे। Lord healed me. प्रभु ने मुझे चंगाई दी। Right from the times of my childhoodness. मेरे बचपन से ही, Even after when I came to ministry, और यहाँ तक कि जब मैं सेवकाई में आया I उसके have बाद faced lot of sickness in my personal life. मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी बीमारियों का सामना किया। I have wept and wetted my pillows. और मैं तो रोता रहा, यहाँ तक कि अपनी तकिया भी मैंने भिगो दी। I have wept whole night in sickness. मैं बीमारी में सारी रात रोता रहा। My friend, मेरे दोस्तों, the Lord has healed me completely. प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगाई दी है। 2002, 2002 में I underwent 2 operations. मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे। First one was appendix, पहला तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, which was done on 2002. जो कि 2002 में हुआ था। After this operation, one after the other sicknesses start coming in my life. और इस ऑपरेशन के बाद में मेरे जीवन में एक के बाद एक बीमारियां आने Finally, लगी। I have been infected by tuberculosis. और उसके बाद में मुझे टीबी का इन्फेक्शन हुआ। My lungs had infected.
मेरे फेफड़ों पर उसका प्रभाव पड़ा था। My body became weaker. मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया। I thought that I am going to die in this sickness. मैंने सोचा कि मैं इस बीमारी में शायद मर जाऊंगा। One day, एक दिन Lord Jesus प्रभु यीशु visited me प्रभु personally. यीशु मुझसे व्यक्तिगत रूप में मिलने के लिए आए। I saw him. मैंने उसे देखा That is the day और वही तो वो दिन I है got a healing in my body. जिस दिन मैंने अपने शरीर में चंगाई पाई। From that day उस दिन से आगे till this day, आज तक 12 years have passed by. 12 साल बीत चुके हैं। 13 years have passed by. लगभग 13 साल बीतने वाले हैं। No signs and symptoms of that kind of sickness anymore. उससे उस बीमारी के कोई भी चिन्ह अब तक मेरे शरीर में नहीं है। And from that day onwards, और उस दिन से आगे He helped me to minister with the very gift of the Holy Spirit. उसने मेरी मदद की कि मैं पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा सेवकाई कर सकूं। That day onwards, the Lord entrusted me the ministry with signs and wonders. उस दिन से आगे परमेश्वर ने मुझे चिन्ह और चमत्कार करने की सेवकाई दी। He trained me to use and operate the 9 gifts of the Holy Spirit. उसने मुझे ट्रेन किया कि मैं पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में काम करने लगूं। Even today is your day. और यहां तक कि आज आपका दिन I है। tell you the truth. मैं आपको सच्चाई बताऊं, You will not alone be healed. आप केवल चंगाई ही नहीं पाएंगे, Through you, आपके द्वारा, through your testimony, आपकी गवाही के द्वारा, through your life, आपके जीवन के द्वारा, through your very personal life, आपके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा many are going to receive this healing. बहुत से लोग इस चंगाई को You will पाएंगे। wipe the tears of many. आप बहुत से लोगों के आंसुओं को पोंछेंगे। Whenever people come to me, जब भी लोग मेरे पास आते हैं, whenever people come prayer for the healing, जब भी लोग चंगाई की प्रार्थना करवाने के लिए मेरे पास आते हैं, I recollect all things I underwent during my sick period. मेरी बीमारी के समय मैं जिन दुखों से होकर गया उन बातों के बारे में मैं सोचता हूँ And my eyes are filled with tears. और मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती When I हैं। pray with compassion, जब मैं तरस के साथ प्रार्थना करता हूँ, my Lord Jesus answers these prayers with miracles. मेरा प्रभु यीशु मसीह इन प्रार्थनाओं को चमत्कारों के द्वारा उत्तर देता है। Even today, my friend, यहाँ तक कि आज भी मेरे दोस्तों, I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। You will be healed. आप चंगाई पाएंगे, You'll be healed from cancer, आप कैंसर से चंगाई healed from पाएंगे, kidney problems, आप किडनी प्रॉब्लम से healed from चंगाई lung पाएंगे, infection, लंग्स इन्फेक्शन से चंगाई पाएंगे, healed from cardiac problems, कार्डियो प्रॉब्लम से आप चंगाई पाएंगे, healed from the broken relationship. और जो टूटे हुए संबंध है उसमें चंगाई पाएंगे। The Lord will do these beautiful things. प्रभु ये सारे सुंदर काम करेगा। Once they brought a 80 years old Amma to our church. एक बार एक 80 साल की अम्मा को हमारी कलीसिया में लाया गया। 3-4 people lifted her hand. They just brought her to the लगभग church. 3-4 लोग उन्हें उठाकर कलीसिया में लेकर आए। They say she has a cyst of cancer, उन्होंने कहा कि इनके अंदर कैंसर की एक गांठ है and also they could not operate that cyst और वो उस गांठ को ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं because of the age factor. क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी And she was suffering. और वो दुख उठा रही थी। She was suffering so much. वो इतनी ज्यादा दुख उठा रही थी। She said, "Let me die. उसने कहा मैं मर जाऊं, I am not able to bear the pain anymore." मैं इस दर्द को अभी नहीं सह सकती हूँ। So we all started praying for her. और इसलिए हम सब ने उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। As a church, कलीसिया के रूप में prayed for her. हमने उनके लिए प्रार्थना की। Power of the Lord touched her. प्रभु की सामर्थ ने उन्हें स्पर्श किया। The cyst disappeared then and there. वो जो गांठ थी वो उसी समय गायब हो गई And she received back her strength. और उसने अपना बल वापस पाया। Even today, और आज भी she is a great witness for the Lord in this place. इस जगह पर वो परमेश्वर के लिए महान गवाही है, साक्षी हैं। She is so happy. वो बहुत ही खुश हैं। She always keep glorifying God and worshiping God. वो हमेशा प्रभु को महिमा देती, प्रभु की आराधना करती हैं। Doctors are amazed to see the restoration. और डॉक्टर इस तरह की चंगाई को देखकर चकित हैं। Today I am going to pray not only for your physical healing, आज मैं केवल आपकी शारीरिक चंगाई के लिए ही प्रार्थना नहीं करूंगा, even for your inner healing. लेकिन साथ में आपके भीतरी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करूंगा। You might be so broken from inside. शायद हो सकता है कि आप भीतर से बहुत टूट गए हैं। You might be depressed. आप शायद निराश You हो। might be so much down inside. आप अपने भीतर से बहुत ही नीचे चले गए हो। Today is your day for healing. आज आपकी चंगाई का दिन है।
Are you ready to agree with me in prayer? क्या आप प्रार्थना में मेरे साथ सहमत होने के लिए तैयार हैं? Are you ready to trust the Lord? क्या आप प्रभु पर भरोसा करने के लिए Are तैयार you हैं? ready to surrender yourself to Lord Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को समर्पित होने के लिए तैयार हैं? Are you ready to give yourself to Lord Jesus? क्या आप खुद को प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हैं? Do you believe by His wounds you will be healed? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे? Jesus has paid the price for your healing. और यीशु मसीह ने आपकी चंगाई के लिए कीमत चुकाई है, So you need not to go in suffering. और इसीलिए आपको दुख उठाने की जरूरत नहीं है। He has taken all your sufferings on the cross. उसने क्रूस पर आपके सारे दुखों को उठा लिया है। When we see Jesus on the cross, जब हम यीशु को क्रूस पर देखते we हैं see His nail-pierced hands. और जब हम उसके कीलों से छिदे हुए हाथों को देखते हैं, When we see His blood-shedding body in the cross, जब क्रूस के ऊपर लहूलुहान उसकी देह को हम देखते हैं, we'll feel so sorry. हम उसके लिए बड़े दुख को महसूस करते हैं। You know why He took up all these things? आप जानते हैं उसने ये सब कुछ क्यों किया? Why He took up all these wounds? उसने ये सारे जख्मों को क्यों उठाया? Why was His hand was pierced? उसके हाथों में क्यों कीले Why ठोके He गए? took up these wounds? उसने ये जख्म क्यों उठाए? So that He can bring healing to your life. ताकि वो आपके जीवन में चंगाई लेकर आ सके। So enemy will not have legal rights over your body right now. और इसलिए शत्रु के पास में आपके शरीर के ऊपर में अभी इस समय Because नैतिक you अधिकार believe नहीं, in the work of Lord Jesus on the cross. क्योंकि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु के काम पर आप विश्वास करते हैं। If you believe, अगर आप विश्वास if you करें, believe, यदि विश्वास करें, come on, let us agree in prayer right now. तो आइए हम प्रार्थना में एक साथ सहमत होते हैं। Kneel down before your TV screens. अपने टीवी के सामने आप घुटनों पर आ सकते Join हैं with me in this prayer. और इस प्रार्थना में आप मेरे साथ में जुड़ जाएं। Faith, let us pray. विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना Because करें, Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है the fervent prayer of righteous man is so powerful. धर्मी जन की जो प्रार्थना है वो बहुत ही सामर्थी है। And when we pray a fervent prayer, और जब हम डट कर प्रार्थना करते हैं the sick people will be healed. That's what word says. और जो बीमार लोग हैं वो चंगे होंगे, वचन यही तो कहता है। Come on, let us pray now. आइए हम अभी प्रार्थना करते हैं। Rise up from your cot. अपने बिस्तर पर से आप खड़े हो जाएं, Rise up from your sofa. अपने सोफा पर से खड़े हो जाएं Rise up. और उठ खड़े हो। Agree with me in prayer. प्रार्थना में मेरे साथ सहमत हो Let जाइए। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you for sending your precious son Jesus. पिता, तेरे बहुमूल्य पुत्र यीशु को भेजने के लिए धन्यवाद। Thank you that you made him to pay price for our healing on the cross. तेरा धन्यवाद कि क्रूस के ऊपर उसने हमारी चंगाई के लिए कीमत चुकाई है। Thank you, Jesus, you have taken up all our sickness on the cross. धन्यवाद यीशु कि तूने क्रूस पर हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया है। Right now, I pray for my brother, sister, amma, uncle, auntie, whoever watching this program, who is asking you for healing in their lives. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, चाचा चाची जो भी इस समय तुझसे चंगाई मांग रहे हैं, उन्हें चंगाई दे। I pray for the people who are just waiting on you to receive this healing right now. मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तेरी राह देख रहे हैं कि अपनी चंगाई को प्राप्त करें। Heal their physical bodies, Lord. हे प्रभु, इनके शारीरिक देह को तू चंगाई दे। From the top of the head to the sole of the feet. इनके सिर से लेकर इनके पैर के तलवे तक तू Let चंगाई your दे। precious blood flow. तेरा बहुमूल्य लहू बहने Let the पाए healing anointing flow. और जो चंगाई का अभिषेक है वो बहने पाए। Let the power of living God flow. जीवित परमेश्वर की सामर्थ बहने पाए। Let the resurrection power of Lord Jesus flow. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ बहने पाए। Touch, Lord. इन्हें छू ले प्रभु। Touch that kidneys which are not functioning. जो किडनी सही काम नहीं कर रही है उसे तो अभी स्पर्श कर ले। Let it function right now. यह अभी इसी समय सही तरीके से काम करे। Touch that heart which has been blocked. जो हार्ट ब्लॉक हो चुका है उस हार्ट को अभी तो इसी समय स्पर्श कर ले। Touch their nerves and heal that arthritis. ए प्रभु, इनके नसों को छू ले, इनके अर्थराइटिस से चंगाई दे। Touch their skins and heal all sorts of skin diseases. प्रभु, इनकी चमड़ी को छू ले और हर तरह की चमड़ी की बीमारी से चंगाई दे। Let the blood of Jesus flow in their blood so that every sorts of infirmities in the blood be healed. यीशु मसीह का लहू इनकी रगों में दौड़े, इनके खून के साथ दौड़े, ताकि खून की हर एक जो कमी है वो दूर हो जाए, चंगी हो जाए। All sorts of bone problems, joint problems be healed right now. हर एक हड्डी की समस्या, जोड़ों की समस्या अभी इसी समय चंगी हो जाए।
Thank you, Lord, that you're healing thyroids right now. धन्यवाद प्रभु कि तो अभी इस समय थायराइड को चंगाई दे रहा है। Thank you that you're healing the lungs, हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तो इस समय फेफड़ों को चंगाई दे रहा है। healing fibroid tumors, फाइब्रॉइड ट्यूमर्स को चंगाई दे रहा है। तेरा धन्यवाद। healing cancer tumors, कैंसर के ट्यूमर को चंगाई दे रहा है, इसलिए तेरा healing धन्यवाद। ulcers. तू अल्सर को अभी इस समय चंगाई दे रहा Thank है। you, Jesus, for this healing. हे प्रभु यीशु इन चंगाइयों के लिए तेरा धन्यवाद हो। Receive, my friend. मेरे दोस्तों इसे ले ले। Right now, the power of God has been manifest. अभी इसी समय प्रभु की सामर्थ प्रकट हो रही है। I see a person been healed from asthma. मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति अस्थमा से चंगे हो रहे I हैं। see a person been healed from blood diseases. मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति खून की जो बीमारी है उससे चंगे हो रहे हैं। I see a cyst been healed for one sister. In the breast, you have a cyst. और मैं देख रहा हूँ कि एक बहन के सीने में गांठ है, आप चंगाई पा रहे हैं। Right now, that cyst is going to disappear. अभी इसी समय वो गांठ जो है वो गायब हो जाएगी। Receive the healing right now. अभी इसी समय चंगाई को ले ले। I see somebody watching with a suicidal thought. The Lord is healing your mindset. मैं देखता हूँ कि कोई आत्महत्या के विचार आपके मन में आ रहे हैं। इस समय परमेश्वर आपके मन को चंगाई दे रहा है। Power of God is flowing into your rooms right now. प्रभु की सामर्थ अभी आपके कमरे में बह रही है। Lord, perfect your healing from the top of the head to the sole of the feet. हे प्रभु अपनी चंगाई को सिद्ध कर इनके सिर से लेकर इनके पैर के तलवे तक। God is blessing you with your supernatural finances. परमेश्वर अलौकिक धन के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। Oh, we praise you, Jesus, for this healing. हे प्रभु यीशु इन चंगाइयों के लिए तेरी स्तुति Oh, करते we हैं। thank you, Jesus, for this healing. यीशु इन चंगाइयों के लिए तुझे धन्यवाद देते We हैं। give you glory and praise. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। It's such a joy to come to your house and bring God's word, my friend. मेरे दोस्तों आपके घर में आकर परमेश्वर का वचन बताना सच में हमारे लिए खुशी की बात है। I thank the Lord for wonderful miracles you've been receiving through this program. इन प्रोग्राम के माध्यम से आप जो अद्भुत चमत्कार पा रहे हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I give him all the glory. मैं उसे सारी महिमा देता हूँ। I thank you all for calling and getting in touch with us and sending your prayer request. आप सब हमें जो फोन कर रहे हैं, अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद हो। We ensure you our sincere prayers. हम हमारी ईमानदारी की प्रार्थना की आपको शाश्वती देते हैं। Love you all in the name of the Lord. आप सभी से प्रभु के नाम में हम प्रेम करते हैं। It is the love that the Lord has shed into our hearts to bring this program to your life. और परमेश्वर ने ये प्रेम हमारे दिल में रखा है कि इस प्रोग्राम को आपके जीवन में लेकर It's a आए। burden given by the Lord to minister to you through this program and strengthen you in your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में आपको बल देने के लिए ये प्रोग्राम तो परमेश्वर ने मानो हमारे दिल में एक बोझ के रूप में रखा है। Our desire is to see the name of the Lord being glorified in your personal life. हमारी इच्छा यही है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के यीशु के नाम को महिमा पाते हुए हम देखें। Today we are going to pray for all those who are suffering with sickness and those who are waiting on the Lord for healing. आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमारी के कारण दुख उठा रहे हैं और प्रभु की राह देख रहे हैं कि वो चंगाई You might पाए। be watching this program in the sick bed. शायद हो सकता है कि आप बीमारी में बिस्तर पर पड़े हुए प्रोग्राम You देख might रहे be हैं। watching this program from some hospital. शायद हो सकता है कि आप किसी हॉस्पिटल से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। You might be watching in this program through the sick bed, which is less drawing you near to the death. और शायद आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं जो आपको बिल्कुल खत्म करने पर हैं। Even today, और आज भी as you have tuned to this program, जैसे आप इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, I am very sure of this one thing. मैं इस एक बात के बारे में निश्चित हूँ, Lord's word will never return back to him in emptiness. परमेश्वर का वचन